लिखो, सबसे पहले लिखो डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी. Elasticity is that property of the material. Elasticity is that property of the material of a body. That property of material of a body. The body opposes any change in its shape. Material of a body by virtue of which material of a body by virtue of which the body opposes any change in its shape or size when deforming forces are applied to it. When deforming forces are applied to it, and recovers its original state as soon as the deforming forces are removed. And recovers its original state as soon as the deforming forces are removed. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग दो, स्ट्रेस. नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे स्ट्रेस. ठीक है, लिखो, when an external force is applied to a body, when an external force is applied to a body which changes the size or shape of the body, then at each cross section of the body an internal reactionary force is developed. An internal reactionary force is developed in the direction opposite to the applied force, which tends to restore the body to its original state. The internal restoring force acting per unit area of cross section. The internal restoring force acting per unit area of cross section of the deformed body. The internal restoring force acting per unit area of cross section of the deformed body is known as stress. तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है? Whenever any force changes the size or shape of the body, ठीक है, तो at all the dimensions, ठीक है, an internal restoring force acts which resist that change. तो वो stress, that internal resistive force per unit area is known as stress. ठीक है ना. तो stress का फॉर्मूला है force by area per unit मीटर स्क्वायर, क्योंकि SI यूनिट लिख रहा है. force by area मतलब क्या? प्रेशर है ना. तो
ऐसा यूनिट है सेम एज प्रेशर, पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो नेक्स्ट हेडिंग दो स्ट्रेन। नेक्स्ट टर्म स्ट्रेन लिखो, when the size or shape of a body is changed, when the size or shape of a body is changed under an external force, when the size or shape of a body is changed under an external force, the body is said to be strained. The body is said to be strained. The change occurred in unit size of the body. The change occurred in unit size of the body is called strain. ठीक है, द चेंज ऑकर्ड इन यूनिट साइज ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या बोला है? चेंज ऑकर्ड इन यूनिट साइज ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो चेंज क्या होगा? वो डेल्टा एक्स, सपोज वो क्वांटिटी एक्स है, ठीक है, मान लो लेंथ हुआ, वॉल्यूम हुआ, जो भी हुआ, सपोज वो एक्स है, तो स्ट्रेन इज डेल्टा एक्स बाय एक्स। ठीक है, तो क्या है? चेंज इन साइज बाय साइज, मतलब दोनों का यूनिट क्या होगा? सेम। ठीक है ना, तो स्ट्रेन इज नो यूनिट। ठीक है, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम है। ठीक है, तो अगर लाइक तुम्हारा ये लेंथ हुआ, ये टर्म लेंथ अगर होता है, लेंथ में चेंज होता है, लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो हम लोग उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब याद रखना चेंज इन लेंथ। ठीक है, चेंज इन लेंथ, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज डेल्टा एल बाय एल। ठीक है, चेंज इन लेंथ बाय लेंथ। वैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब चेंज इन वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? डेल्टा वी बाय वी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो हुक्स लॉ, HOOKE, हुक्स लॉ। लिखो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, according to Hooke's law, if the strain is small, according to Hooke's law, if the strain is small, then the stress is directly proportional to the strain. ठीक है, according to Hooke's law, if the strain is small, ठीक है, if the strain is small, then the stress is directly proportional to the strain. ठीक है, ये हुक्स लॉ था। नेक्स्ट लिखो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। हेडिंग दो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। लिखो द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन is a constant for the material of a given body, is a constant for the material of the given body and is called modulus of elasticity, and is called modulus of elasticity. ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ई से, कैपिटल ई इज इक्वल टू क्या होगा? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, फॉर्मूला लिख दो उसका, कैपिटल ई इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ द स्ट्रेन इज लॉन्गिट्यूडनल, if the strain is longitudinal, then the modulus of elasticity
स्ट्रेन इज लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल मतलब समझ रहे हो ना, चेंज इन लेंथ हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब इफ द स्ट्रेन इज लॉन्गिट्यूडनल देन द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड यंग्स मॉड्यूलस. If the strain is longitudinal, then the modulus of elasticity is called Young's modulus. Next, if the strain is in volume, if the strain is in volume, मतलब अगर volumetric strain हो रहा है, then it is Bulk's modulus. ठीक है, if the strain is in volume then it is called Bulk's modulus. Next, if the strain is shearing, if the strain is shearing then it is called modulus of rigidity, then it is called modulus of rigidity. इलास्टिक बिहेवियर ऑफ ए वायर अंडर इंक्रीजिंग लोड. देखो इसका मतलब हम लोग एक वायर लेंगे, ठीक है, एक वायर है जिसका एक मतलब एक एंड एक रीजन में मतलब एक फिक्स सपोर्ट के साथ है, ठीक है, इट इज क्लैम्प्ड एट अ फिक्स सपोर्ट, और दूसरी तरफ हम लोग क्या दे रहे हैं, हम लोग कुछ भी एक लोड दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई भी एक लोड दे रहा है एल, ठीक है ना, इंक्रीजिंग लोड मतलब क्या, टाइम के साथ धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है. तो हुक्स लॉ तुमने क्या लिखा था, पढ़ो एक बार. व्हेन द स्ट्रेन इज स्मॉल देन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है. तो देखो हम लोग इंक्रीजिंग लोड के लिए ये ग्राफ ऐसा होगा, ये ग्राफ क्या स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का है, एक्चुअली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, क्योंकि अगर देखो जब लोड दोगे तो क्या होगा, लेंथ ही इंक्रीज होगा ना, यहाँ पे क्या मतलब कौन सा स्ट्रेस होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है ना. स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन. तो सबसे पहले हुक्स लॉ क्या बोल रहा है, व्हेन स्ट्रेन इज स्मॉल, मतलब देखो ओ से लेके ए तक के रीजन में क्या हो रहा है, स्ट्रेन बहुत कम इंक्रीज हुआ है ना, यहाँ से यहाँ में कितना बहुत कम स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है. तो जब व्हेन स्ट्रेन इज स्मॉल देन क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. तो हो रहा है ना, स्ट्रेट लाइन है, देखो OA एक परफेक्टली स्ट्रेट लाइन है, मतलब OA पार्ट में क्या हो रहा है, हुक्स लॉ सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है. फिर देखो यहाँ से धीरे धीरे क्या हुआ, थोड़ा सा कर्व स्टार्ट हुआ, ज्यादा नहीं, लेकिन ए पॉइंट से क्या हो रहा है, थोड़ा सा कर्व होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है. ये ए पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट बोलते हैं, ठीक है, ए पॉइंट को. बी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, ठीक है. देखो बी, ये ए से बी पॉइंट यहाँ पे मतलब हुक्स लॉ थोड़ा सा डेविएट हो रहा है ना, क्योंकि एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं है, ये थोड़ा सा कर्व, अगर पूरा स्ट्रेट लाइन होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना. तो यहाँ लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या है, ये रीजन और ये रीजन में, ये रीजन हुक्स लॉ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये जो ए बी छोटा सा रीजन. लेकिन अगर तुम लोग लाइक ये मतलब लोड रिमूव कर दोगे, है ना, जब स्ट्रेन ए से लेके बी तक के बीच में लाई कर रहा है और तुमने लोड रिमूव कर दिया तो क्या होगा, ये अपना ओरिजिनल लेंथ वापस रिगेन कर सकता है, ठीक है, वो है. तो ये जो ओ से लेके बी तक पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये रीजन को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक रीजन. क्यों बोलते हैं, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक में अगर हम लोग फोर्स रिमूव कर देंगे तो वायर कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, इसीलिए ओ से लेके बी तक हम लोग इलास्टिक रीजन बोलते हैं, ठीक है. फिर बी से पॉइंट सी को हम लोग इल्ड पॉइंट बोलते हैं, ठीक है. पॉइंट सी इज द इल्ड पॉइंट. यहाँ से क्या होता है, जब बी से आगे जाते हो परमानेंट स्ट्रेन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है. परमानेंट स्ट्रेन मतलब क्या, हाँ, कैन नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, मतलब यहाँ अभी अगर तुम लोग फोर्स भी हटा दोगे ना, ये बीच जब व्हेन स्ट्रेन इज लाइंग फ्रॉम दिस टू दिस, फोर्स हटा दोगे तो भी ये अपना ओरिजिनल लेंथ रिगेन नहीं कर सकता, मतलब ये जो लोड की वजह से लोड दोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे इसका लेंथ इंक्रीज होगा ना, तो वो ओरिजिनल लेंथ रिगेन नहीं कर सकता जब यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में लाइन कर रहा है, ठीक है. और जब सी से आगे जाएगा, सी से डी के बीच को हम लोग प्लास्टिक रीजन बोलते हैं. प्लास्टिक रीजन मतलब क्या, नो स्ट्रेन नहीं, मतलब यहाँ पर मतलब और ज्यादा फोर्स इंक्रीज हो गया, ठीक है, और ज्यादा फोर्स, और क्या होता है, ये जो मतलब वायर होगा वो धीरे धीरे थिन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है. मतलब तुम लोग लोड मतलब रिमूव
और डी से लेके ई तक क्या तुम लोग लोड रिमूव कर वो टूट जाएगा, ये ब्रेकिंग रीजन है डी से लेके ई, ठीक है, मतलब टूट जाएगा वायर, ठीक है। तो अभी लिख लेते हैं, मैं सबका डेफिनेशन बोल दे रही हूँ। लिखो, इन द रीजन ओ ए, ठीक है, ओ से लेके ए तक, इन द रीजन ओ ए हुक्स लॉ इज ओबेड, इन द रीजन ओ ए हुक्स लॉ इज ओबेड। Stress at the point A is known as limit of proportionality, ठीक है, मतलब वो पॉइंट जहां तक हुक्स लॉ ओबे हो रहा है वो पॉइंट को बोलते हैं हम लोग लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। स्ट्रेस एट पॉइंट ए इज नोन एज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। द स्ट्रेस एट पॉइंट बी इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट, ठीक है, पॉइंट बी पे जो स्ट्रेस होगा उसको हम लोग इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। द स्ट्रेस एट पॉइंट बी इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। ठीक है, और एक पॉइंट तुम लोग ये लिख सकते हो कि मतलब वैल्यू ऑफ इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनलिटी लिमिट जो होता है दोनों बहुत क्लोज होता है, ठीक है, वैल्यू ऑफ इलास्टिक लिमिट इज वेरी क्लोज टू दैट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। OB is called elastic region. OB is called elastic region. क्यों मैंने बता चुका है, ठीक है, OB को क्यों बोलेंगे elastic region? Point C is called the yield point. Point C is called द yield पॉइंट। ये O डैश मैंने क्यों ज्वाइन किया देखो, क्योंकि पॉइंट C से क्या हो सकता है, हम लोग वापस ओरिजिनल वायर में नहीं आ सकते हैं, ठीक है, मतलब वायर क्या होगा, परमानेंट स्ट्रेन आ गया होगा, तो इसीलिए ग्राफ में हम लोग C पे आ जाने के बाद वापस इस तरफ नहीं आ सकते, वापस आएगा तो इस तरफ आएगा, ठीक है, मतलब अगर रिट्रेस करेंगे ग्राफ को तो वापस ऐसे नहीं जा सकता, ऐसे आएगा, क्योंकि परमानेंट स्ट्रेन हो गया होगा, मतलब वायर का साइज लेंथ परमानेंटली चेंज हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स इतना बढ़ गया होगा। ये क्या हो रहा है, स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है ना, ग्राफ ऊपर जा रहा है मतलब क्या, स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रेस इंक्रीज मतलब क्या, फोर्स बढ़ते जा रहा है, ये जो लोड है हम लोग उसको इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है। लिखिए, पॉइंट सी इज कॉल्ड द यील्ड पॉइंट। रीजन सी डी इज कॉल्ड द प्लास्टिक रीजन। रीजन सी डी इज कॉल्ड द प्लास्टिक रीजन, ठीक है, सी से लेकर डी तक इसको प्लास्टिक रीजन बोलते हैं। At point D, the stress reaches its maximum value. At point D, the stress reaches its maximum value. Maximum value और ब्रेकिंग स्ट्रेस या फिर उसको टेंसाइल स्ट्रेस भी बोलते हैं, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस को हम लोग ब्रेकिंग स्ट्रेस या फिर टेंसाइल स्ट्रेस भी बोलते हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन में फाइंड टेंसाइल स्ट्रेस या फिर फाइंड ब्रेकिंग स्ट्रेस ऐसा भी बोला होगा, तो उसका डेफिनेशन क्या लिखोगे, ब्रेकिंग स्ट्रेस या फिर टेंसाइल स्ट्रेस का, मैक्सिमम स्ट्रेस व्हिच अ वायर कैन बियर बिफोर ब्रेकिंग, ठीक है, ब्रेकिंग स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस is the maximum stress or the maximum force which a wire can bear before breaking. टूटने से पहले जितना मैक्सिमम फोर्स वो विथहेल्ड कर सकता है। Young's modulus of elasticity. Heading दो, Young's modulus of elasticity. लिखो, within the elastic limit up to which, within the elastic limit
within the elastic limit up to which Hooke's law is applicable. Up to which Hooke's law is applicable, the ratio of the longitudinal stress, the ratio of the longitudinal stress to the corresponding longitudinal strain, the ratio of the longitudinal stress to the corresponding longitudinal strain is called Young's modulus, Young's modulus of the material of the body. ठीक है, Young's modulus can be determined for only solids. ठीक है, ये liquids और gases के लिए नहीं होता. It can be determined only for solids. Young's modulus को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल वाई से. ठीक है, देखो यहाँ पर भी हम लोग सेम ही लेंगे. एक वायर लेते हैं. ठीक है, वायर का लेंथ हमें दिया है L, लेंथ L एंड रेडियस इज R. ठीक है, एक वायर लेना है जिसका एक एंड फिक्स है. इट इज क्लैम्प्ड एट अ फिक्स सपोर्ट. और दूसरा एंड पे हम लोग कुछ भी एक वेट लेते हैं mg. ठीक है, दूसरा एंड पे एक वेट है mg. तो अभी यंग्स मॉड्यूलस क्या डेफिनेशन लिखा? इट इज द रेशियो ऑफ द longitudinal stress by longitudinal strain. ठीक है, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? फोर्स बाय एरिया. ठीक है, स्ट्रेस इज फोर्स बाय एरिया. तो यहाँ पे एरिया क्या होगा? वायर का रेडियस दिया है तो एरिया को मैं पाई आर स्क्वायर लिख सकती हूँ. ठीक है, पाई आर स्क्वायर बाय लॉन्गिट्यूड. और फोर्स क्या है? अच्छा छोड़ो, पहले फॉर्मूला लिखते हैं ऐसे, फिर पुट करेंगे सब. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब क्या? चेंज क्या हो रहा है? लेंथ चेंज हो रहा है. ठीक है, तो मतलब उसको भी तुम्हें डिनोट करना पड़ेगा. अगर वायर ओरिजिनली इतना है, यहाँ से यहाँ L है, तो इलोंगेशन कहाँ पे हो रहा है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोला है मतलब लेंथ में हो रहा है. तो क्या होगा? वायर कुछ इंक्रीज होगा. ये क्या होगा? डेल्टा L. ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा? डेल्टा L बाय L. तो अभी पुट करो. फोर्स हमारा mg है ना, एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा L बाय L, सॉरी बाय डेल्टा L बाय L. तो क्या हो जाएगा ये? mg L बाय डेल्टा L इंटू पाई आर स्क्वायर. ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ वायर का ये फॉर्मूला है. mg L बाय डेल्टा L इंटू पाई आर स्क्वायर. A structural steel rod has a radius of 10 millimeter. A structural steel rod has a radius of 10 millimeter and a length of 1 meter. Length of 1 meter. 100 kilonewton force. 100 kilonewton force stretches it along its length. 100 kilonewton force stretches it along its length. Young's modulus of structural steel. Young's modulus of structural steel is 2 into 10 to the power 11. Is 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square. Find the strain on the rod. Find the strain on the rod. Options भी लिखो. Option A 1%. Option B 0.04%. Option C 0.08%. Option D 0.16%. क्वेश्चन पढ़ो कोई से.
the steel rod has a radius of 10 millimeter and a 10 millimeter and a length of 1 meter. लेंथ 1 मीटर, ठीक है. 100 kilonewton force stretched along its length. Stretches and हाँ. Young modulus of structural steel is 2 into 10 to 11 millimeters. And the स्ट्रेन निकालना है, ठीक है. तो देखो यंग्स मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल, यहाँ पे एल ऑफ इट्स लेंथ हो रहा है ना, तो मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और स्ट्रेन ही है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होगा, ठीक है. हमें स्ट्रेन निकालना है और यंग्स मॉडुलस दिया है, ठीक है. तो स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस हो जाएगा, है ना. स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस ये तो दिया है, तो सबसे पहले स्ट्रेस निकाल देते हैं, ठीक है. स्ट्रेस निकालो, कितना होगा, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होगा, फोर्स बाय एरिया, ठीक है. फोर्स कितना दिया, 100 किलो न्यूटन, तो 100 इंटू 10⁻³ और एरिया क्या, रेडियस दिया, तो पाई आर स्क्वायर करके एरिया निकाल सकते. तो पाई इंटू आर स्क्वायर 10 मिलीमीटर दिया है, मतलब 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर में कन्वर्ट करोगे -3 ना, 10⁻⁻3 तो ये कितना आ जाएगा, ये ऊपर 10⁴ पाई मतलब 3.14 इंटू ये 10⁻⁻² का होल स्क्वायर 10⁻⁻4. सॉल्व करते हैं उसको, कितना आता है, ये हो जाएगा क्या, 10⁻⁸/3.14 हो जाएगा, 1/3.14 0.318 इंटू 10⁻, यही आ रहा है ना, 0.318 इंटू 10⁸ एरिया पाई आर स्क्वायर की ना, ठीक है. ठीक है, ये स्ट्रेस आया है ना, तो तुम्हें स्ट्रेन यहाँ पे पुट कर दो, स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस. स्ट्रेस सही आया ना, तुम लोग वही निकाला है कि अलग ये से क्यों, 3.18 इंटू 10⁻⁷ बाय यंग्स मॉडुलस. यंग्स मॉडुलस है 2 इंटू 10⁻11, ठीक है. तो 3.18/2 कितना आएगा, 1.59, ठीक है, इंटू 10⁻⁻4. यूनिट सही डाला ना, 100 10⁻³ पाई आर स्क्वायर, ये 10⁵ होगा ना, यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कहीं गलती है, 10⁵ इंटू 100 10⁵ होगा ना, तो 10⁻, ये क्या हो जाएगा, 10⁹ हो जाएगा. बाय करने से ये कितना आएगा, 1.59 इंटू 10⁻³ आ रहा है ना, तो मतलब क्या आ रहा है, 1.59 को राउंड ऑफ 1.6 लिख सकते हो, 1.6/1000, ठीक है. तो ये क्या है, स्ट्रेन. स्ट्रेन क्या होता है, ΔL/L, ठीक है. तो हमें क्या ऑप्शंस परसेंटेज में दिया है, तो परसेंटेज मतलब क्या, इसमें इंटू 100 करोगे क्योंकि परसेंटेज में निकालना है, तो क्या है 0.16%, ठीक है. देखो, ऑफ स्टील एंड रबर, आउट ऑफ स्टील एंड रबर, प्रूव विच इज मोर इलास्टिक एंड वाई. आउट ऑफ स्टील एंड रबर, प्रूव विच इज मोर इलास्टिक एंड वाई. कौन सा मोर इलास्टिक होगा, स्टील होगा. प्रूफ किया कोई, देखो मान लो एक स्टील वायर लियो और एक रबर वायर लियो, ठीक है. एक स्टील और एक रबर, सेम लेंथ है दोनों का, ठीक है. टेक अ स्टील एंड अ रबर वायर, बोथ हैविंग सेम लेंथ एंड सेम रेडियस, ठीक है. दोनों का लेंथ एल है, लेंथ इक्वल टू एल एंड रेडियस आर, दोनों का, ठीक है. सस्पेंड फोर्स mg, दोनों में अदर एंड, एक एंड तो क्लैंप्ड है
और दूसरे एंड पे सेम फोर्स थ्रू बोथ। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं। ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस निकालते हैं दोनों का। क्या होगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, फोर्स स्ट्रेस यानी कि फोर्स बाय एरिया बाय स्ट्रेन, तो डेल्टा एल बाय एल। फोर्स यहाँ पे एम जी इंटू एल ऊपर जाएगा। ये यंग्स मॉड्यूलस से पहले स्टील निकालता है, तो एल तो सेम है दोनों के लिए, बाय एरिया, एरिया भी सेम होगा दोनों के लिए क्योंकि रेडियस सेम है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर इनटू डेल्टा एल एस मानते हैं। स्टील के लिए चेंज इन इलोवेशन इज डेल्टा एल एस। ठीक है, रबर के लिए निकालते हैं बाय आर इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी एल बाय पाई आर स्क्वायर। ये सब तो सेम होगा, दोनों के लिए सेम लिया, ये डेल्टा एल आर। ठीक है, तो अभी दोनों का रेशियो निकालते हैं। रेशियो देखो, दोनों में इलोंगेशन कहाँ है, डिनोमिनेटर में। ठीक है, बाकी सब सेम है, दोनों के लिए सिर्फ अलग क्या है, इलोंगेशन। मतलब और इलोंगेशन डिनोमिनेटर में, मतलब इलोंगेशन जितना कम होगा उतना ज्यादा यंग्स मॉड्यूलस होगा और इलास्टिसिटी उतना ज्यादा होगा। यंग्स मॉड्यूलस जिसका ज्यादा उसका इलास्टिसिटी ज्यादा। ठीक है, तो देखो तुम लोग फोर्स सस्पेंड किए हो रबर और स्टील, तो लेंथ किसका इलोंगेट होगा, स्टील थोड़ी ना, स्टील वाला इलोंगेट क्यों, रबर। तो ऑब्वियसली रबर एक्सटेंड होगा ना, एक्सटेंड करने का किसका ज्यादा ही है, तो कौन सा ज्यादा होगा, डेल्टा एल आर क्या होगा, विल बी ग्रेटर देन डेल्टा एल एस। ठीक है, तो प्रूफ जब करोगे तो रेशियो निकालोगे। ऐसे तो पता चल ही रहा है, बट एग्जाम में जब प्रूफ करने दिया होगा तो रेशियो निकालोगे। एम जी एल बाय पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल एस बाय एम जी एल बाय पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल आर। तो यंग्स मॉड्यूल ऑफ स्टील बाय यंग्स मॉड्यूलस ऑफ रबर क्या होगा, चेंज इन एलोवेशन ऑफ रबर बाय चेंज इन एलोवेशन इन स्टील। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली हमारे पास क्या है कि चेंज इन एलोवेशन ऑफ रबर विल बी मोर देन दैट ऑफ स्टील, तो इसीलिए क्या होगा, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील विल बी ग्रेटर देन यंग्स मॉड्यूलस ऑफ रबर। ठीक है, दैट्स व्हाई स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। 14.5 kg man, a 14.5 kg, sorry, mass, a 14.5 kg mass fastened to the end of a steel wire, fastened to the end of a steel wire of unstretched length, steel wire of unstretched length 1 meter is wheeled in a vertical circle, is wheeled in a vertical circle with an angular velocity of, with an angular velocity of 2 radian per second, 2 radian per second at the bottom of the circle, 2 radian per second at the bottom of the circle. The cross-sectional area of the wire, the cross-sectional area of the wire is 0.065 centimeter square, 0.065 centimeter square. Calculate the elongation of the wire, calculate the elongation of the wire when the mass is at the lowest point, when the mass is at the lowest point of its path, when the mass is at the lowest point of its path. The Young's modulus of steel, the Young's modulus of steel is 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square. 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square. क्वेश्चन पढ़ना कोई। A 14.5 kg mass fastened to the end of a steel wire of unstretched length 1 meter. Mass 14.5 kg Fastened to the end of a steel wire of unstretched length 1 meter
हाँ is whirled in a vertical circle with angular velocity of 2 radian per second. एंगुलर वेलोसिटी ना, मतलब ओमेगा दिया है 2 रेडियन पर सेकेंड। At the bottom of the circle, the cross-sectional area of the wire is 0.065 centimeter square. 0.065 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। Calculate elongation of the wire when mass is at the lowest point of its path. लोएस्ट पॉइंट मतलब यही वाला है ना, जब यहाँ पे है। इलोंगेशन मतलब क्या तुम्हें निकालना है, डेल्टा एल फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो यंग्स मॉडुलस दिया होगा ना, 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square. ठीक है। डेल्टा एल चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला वही यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूला से ही लिख लेगा, ठीक है। y इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो ये क्या होगा, फोर्स बाय एरिया। यहाँ पे देखो बाय आर्स पर नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमें डायरेक्टली एरिया दिया है, ठीक है। तो फोर्स बाय एरिया बाय डेल्टा एल बाय एल। तो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू फोर्स इनटू लेंथ बाय डेल्टा एल इनटू एरिया, ठीक है। तो इलोंगेशन कैसे निकलेगा, डेल्टा एल इक्वल टू फोर्स इनटू लेंथ बाय वाई इनटू ए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या नहीं है, ये तीनों है, लेंथ है, यंग्स मॉडुलस है, एरिया है, सिर्फ क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। देखते हैं, देखो बॉडी कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। तो एक मास क्या होगा, mg नीचे होगा ऑब्वियसली, और एक फोर्स होगा यहाँ पे, क्या होगा, F centripetal. हाँ एफ सेंट्रिक। तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें ओमेगा दिया है, तो वो कैसे निकालोगे, हाँ आई ओमेगा। तो क्या करोगे, मास इनटू उसका एक्सीलरेशन जो भी होगा, यहाँ पे ओमेगा दिया है, तो एंगुलर एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला है, ओमेगा स्क्वायर आर, है ना। ओमेगा दिया है तो वो यूज करके निकालेंगे। तो क्या होगा, एम ओमेगा स्क्वायर इनटू आर, मतलब क्या होगा, लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है ना। तो अभी निकाल लोगे तो टोटल फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, एम जी प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एल, ठीक है ना। एम वी स्क्वायर बार सही है, बट यहाँ पे वी तो नहीं है ना, मतलब वेलोसिटी नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी है, इसलिए हम लोग ओमेगा स्क्वायर आर एंगुलर एक्सीलरेशन के टर्म्स में निकालेंगे। तो मास इनटू जी प्लस ओमेगा स्क्वायर एल। तो अभी तो कर ही सकते हो ना, मास कितना दिया 14.5, जी 10 प्लस ओमेगा 2 इंटू लेंथ 1। तो कितना है ये देखो, 14.5 इंटू 10 प्लस 4 14 ना, कितना आ रहा है 203। अच्छा 203 न्यूटन, देख लो 203 को बोल रहा है। तो यहाँ पे पुट कर दो, 203 इंटू लेंथ दिया है 1 बाई यंग्स मॉडुलस 2 इंटू 10 टू द पावर 11, एरिया दिया है 0.065 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो क्या मल्टीप्लाई करोगे, 10 टू द पावर -4। देख लो कितना आ रहा है, डेल्टा एल। तो यूनिट क्या होगा, मीटर में होगा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग दो, बल्क्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। लिखो, within the elastic limit up to which Hooke's law is applicable, within the elastic limit up to which Hooke's law is applicable, Hooke's law is applicable, the ratio of the normal stress, the ratio of the normal stress to the corresponding volume strain, the ratio of the normal stress to the corresponding volume strain is called the Bulk's modulus. Corresponding volume strain is called the Bulk's modulus of the material of the body. कोई भी एक बॉडी लेते हैं, ठीक है। सपोज उस पर अप्लाई कर रहे हैं प्रेशर चारों तरफ से, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होना ना, मतलब क्या करना है, बॉडी के वॉल्यूम को कंप्रेस करना है, ठीक है। मान लो प्रेशर P एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है।
बॉडी का इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इक्वल टू v, ठीक है, और चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा v, ठीक है। तो बल्क मॉड्यूलस निकालेंगे। बल्क मॉड्यूलस क्या बोला है हमें डेफिनेशन? रेशियो ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो नॉर्मल स्ट्रेस मतलब क्या? हाँ, तो यहाँ पे हम लोग फोर्स पर यूनिट जो अप्लाई कर रहे हैं उसको पी लिए हैं, ठीक है, पी। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा? डेल्टा वी बाई वी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग माइनस लेते हैं। माइनस क्यों लेते हैं? देखो, तुम लोग को ये तो पता होगा ना, व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम डिक्रीजेस, है ना, और व्हेन प्रेशर डिक्रीजेस वॉल्यूम इंक्रीजेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो ये जो डेल्टा वी क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है, इसलिए हम लोग माइनस लेते हैं, ठीक है। और अगर उल्टा करोगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी लिख लेना कि व्हेन, ये तो लिख रही है ना, व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है। तो फिर और इतना ही। कॉम्प्रेसिबिलिटी, नेक्स्ट टर्म कॉम्प्रेसिबिलिटी लिखो। द रेसिप्रोकल of the bulk modulus of the material, the reciprocal of the bulk modulus of the material of a body, reciprocal of the bulk modulus of the material of a body is called compressibility, ठीक है। reciprocal of the bulk modulus of the material of a body is called the compressibility. It is denoted by beta. ठीक है, बीटा इज इक्वल टू 1 बाई बी। तो बल्क मॉड्यूलस क्या है हमारा? माइनस पी डेल्टा बी बाई वी। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा बी बाय, ठीक है ना? हाँ, ठीक है। और यूनिट क्या होगा इसका? मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, रेसिप्रोकल, ठीक है। एक वायर लो, क्लैम्प्ड एट वन एंड, दूसरे एंड पे एक फोर्स है, वायर ऑफ लेंथ एल, कैपिटल ले लीजिए, फिर स्मॉल जो स्मॉल, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस क्या होगा यहाँ पे? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस क्या होगा? फोर्स बाय एरिया, ठीक है, फोर्स बाय एरिया बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन को देखो, मैं मान रही हूँ लेट द इलोंगेशन, यहाँ पे जो इलोंगेशन होगा लेट दैट बी एक्स, ठीक है, लेट द इलोंगेशन बी एक्स। तो एक्स बाय एल, तो क्या होगा? यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू एफ एल बाय एक्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्स इलोंगेशन हुआ, उसके बाद हम लोग मानेंगे और एक बहुत ही इन्फिनिटेसिमली स्मॉल इलोंगेशन होगा, मतलब और एक छोटा सा इलोंगेशन होगा dx, ठीक है। लेट इसके बाद फर्दर इलोंगेशन dx। तो हम लोग को वर्क डन निकालना है। वर्क डन क्या होगा? dw dx इलोंगेशन हो रहा है, तो वर्क डन में क्या होगा? स्मॉल वर्क डन, स्मॉल चेंज इन इलोंगेशन के लिए स्मॉल वर्क डन होगा। dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? f इंटू dx। हम लोग यहाँ से f निकाल सकते हैं, ठीक है। तो f निकालो, f इक्वल टू क्या हो जाएगा? ax इंटू वाई बाय एल, ठीक है। तो पुट करो यहाँ पे, अभी dw dx को इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड्स, तो dw का इंटीग्रेशन तो w हो जाएगा वर्क। f क्या है? a y बाय एल इंटू एक्स डी एक्स, ठीक है। तो देखो हम लोग का ओरिजिनल लेंथ क्या था? l, उसके बाद कुछ एक इलोंगेशन हुआ है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग लिमिट्स क्या लेंगे? नहीं, पहले जो x है, मतलब यहाँ पे
कुछ इलांगेशन हुआ है तो फिर x क्या चेंज होगा, l प्लस l प्लस x निकाल रहा है, x से इलांगेशन हमारा dx मतलब स्मॉल, मतलब dx क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, वहां से वहां लिमिट्स निकाल रहे हैं हम लोग, तो l टू l प्लस l चेंज जो निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे a बाय l निकाल दो, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू l, तो ये क्या हो जाएगा a बाय l इंटू एल स्क्वायर बाय 2। ठीक है, देखो ये क्या निकल रहा है, 1/2 को अलग कर दो, 1/2 इंटू ए बाय, एक मिनट पॉज करना, एक मिनट कुछ चेक कर, इसके साथ डिवाइड करूंगी एक बार कैपिटल एल, ठीक है, और एक एरिया है, एक बार डिवाइड किया तो एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू स्ट्रेस, ये क्या हो जाएगा स्ट्रेन हो जाएगा एल बाय एल, ठीक है, स्ट्रेन इंटू ए इंटू एल क्या हो जाएगा वॉल्यूम, हाँ, तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम।